بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: میٹھی زبان، مخلص دوست، رزق حلال، والدین کی دعا اور اخلاق حسنہ۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ ناظرین، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ اور آپ کا گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر نہار منہ کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک بار کہیں سفر ضرور کیا کرو، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ سرسوں کے ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہو تو پانی کثرت سے پئیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں، کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کچا ٹماٹر انسان کو سفید موتیا اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں کھجور کے 3 دانے ڈال کر پینے سے آپ کا قد روز لمبا ہوتا جائے گا۔ ناظرین، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے جو کہ صحت مند رہتے تھے۔ اب پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ڈیڈ سیلز بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈال کر کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔
इसलिए इसे ज़िंदगी बढ़ाने वाला फल भी कहते हैं। अगर कोई शख्स बेख्वाबी का शिकार हो तो उसको चाहिए कि गुलाबी चादर या कंबल इस्तेमाल करे। बेख्वाबी की शिकायत दूर हो जाएगी। शोरबे वाले सालन के अंदर रोटी को भिगोकर खाओ, कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। दाढ़ में दर्द होने लगे तो रोटी पर लौंग का तेल लगाकर दाढ़ पर रख दो, आराम आ जाएगा। जो औरतें बदन पर मोटे बालों से परेशान हैं वो गर्म चीज़ें कम से कम खाएं। अगर आप सीने की बलगम से तंग हैं तो खजूर बलगम निकालती है, सांस के अमराज दूर करती है। सीना साफ रखने के लिए रोज़ 3 खजूरें खा लिया करें। नमक वाले नीम गर्म पानी से गरारे करने से मसूड़ों की सोजन ख़त्म हो जाएगी। अनारदाने की चटनी इस्तेमाल किया करो, आपका वज़न कम हो जाएगा। नज़रीन, प्याज के पानी से मैदा साफ़ होता है और कुव्वत बाह में इजाफा होता है। नमक वाले पानी से घर को धो लिया जाए तो कीड़ों मकोड़ों से निजात मिल जाती है। फूल गोभी के इस्तेमाल से कब्ज़ और बवासीर की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अबू कतादा हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुज़रा तो आपने फरमाया, ये राहत पा गया या दूसरे इससे राहत पा गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये राहत पा गया या दूसरे इससे राहत पा गए, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमन दुनिया की मुश्किलात और तकलीफ़ों से राहत पाकर अल्लाह की रहमत की तरफ जाता है, जबकि फाजिर शख्स से इबाद व बल्लाद और दरख्त व हिवानात राहत पा जाते हैं। नज़रीन, कलवंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। जो लोग तेज़ी से रोटी खाते हैं उनमें मैदे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता और ना ही मैदे का कैंसर होता है। जो लोग रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहे काम करें थकेंगे नहीं। नज़रीन, बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खा लो। अगर किसी औरत को बांझपन की बीमारी हो तो वो दूध में इसबगोल और अनारदाना डालकर पिए और बाहमी मिलाप का वक्फा 15 दिन से बढ़ा दे। इंशाअल्लाह हमल जल्दी ठहर जाएगा। कमर का दर्द हो या पट्ठों का खिंचाव हो तो दूध में सिर्फ थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें, कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहने से लिकोरिया हो जाने का खदशा होता है। जिल्द ज़्यादा आयली रहती हो तो फटकड़ी पानी में भिगोकर जिल्द पर रगड़ लें। जिस्म पर ख़ारिश रहती हो तो नारियल का तेल लगाकर सो जाओ, ख़ारिश ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नज़रीन, तेज़ नमक खाने वालों को ख़ारिश का मसला हो सकता है। ख़ारिश से मुतासर अफराद गर्म चीज़ें खाने से इज्तनाब करें, वरना बीमारी में शिद्दत आ जाएगी। नज़रीन, खाली पेट बादाम खाने से जिल्द अच्छी होती है और दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। खाली पेट अखरोट खाने से बाल लंबे और घने हो जाते हैं। अगर ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट ख़राब हो जाए तो अजवाइन चबाकर खा लें। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ़ वाले पानी में रखें। सुबह के वक्त काला ज़ीरा चबा लेना वज़न में कमी का बायस बनता है। फटकड़ी के ऊपर अंडे की सफ़ेदी डालकर झुर्रियों के ऊपर रगड़ लिया करें, चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आम के दरख्त की मिसवाक कर लेने से मुंह की बदबू गायब हो जाती है। हंज़ला बिन रबी उसैदी बयान करते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे मिले तो उन्होंने पूछा, हंज़ला कैसे हो? मैंने अर्ज़ किया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। उन्होंने फरमाया, सुबहान अल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, वो जहन्नम और जन्नत की तरहीब व तरगीब के ज़रिए हमें नसीहत करते रहते हैं, गोया हम खुद देख रहे हैं। और जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं और अज़वाज व औलाद और ज़राए माश में मशगूल हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हमारी भी यही सूरत हाल है।
मैं और अबू बकर चलते गए हत्ता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हंज़ला मुनाफिक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में होते हैं तो आप जन्नत और दोज़ख के ज़रिए हमें नसीहत फरमाते हैं, गोया हम उसे खुद आँखों से देख रहे हैं। और जब हम आपके पास से आ जाते हैं और अपने माल बच्चों और ज़राए माश में मशगूल हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम्हारी जो कैफियत मेरे पास होती है और तुम ज़िक्र की जिस सूरत में होते हो, अगर तुम्हारी वो कैफियत हमेशा रहे तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफिया करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, लेकिन हंज़ला किसी वक्त ऐसे और किसी वक्त ऐसे होता है। नज़रीन, रोज़ाना सौंफ वाला दूध पी लेने से आपका रंग गोरा हो जाएगा। रात को सोने से कबल खुश्क आलू बुखारा खा लो, पेट से जुड़े काफ़ी सारे मसाइल दूर होंगे, मैदे की तेज़ाबियत और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर हिचकियाँ लग जाएं तो पुदीने के पत्ते चबाएं। 3 चीज़ें हमेशा याद रखने के काबिल हैं, मौत, एहसान और नसीहत। अगर किसी निहायत शोर वाली जगह पर किसी शख्स की बात सुनने में दुश्वारी पेश हो तो दाएं कान का इस्तेमाल करें, क्योंकि दायां कान इंसानी आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा बेहतरी से कैच करता है। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। इसबगोल का छिलका निहार मुँह पी लेने से बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। चीनी वाली चाय कम पिया करें, इससे मोटापा बहुत जल्दी आता है। बदन की सुस्ती दूर करने के लिए दिन में 2-3 खजूरें रोज़ाना खाया करें। पुदीने की खुशबू रोज़ाना सूंघ लेने से सांस की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। छोटी मक्खी के शहद का एक कतरा आँख में डालने से आपकी बिनाई तेज़ हो जाएगी और आँखों की चमक में इजाफा हो जाएगा। अंजीर शुगर के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकती है और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म पर कलवंजी का तेल लगाने से कोई जहरीला कीड़ा नहीं काटता और ना ही कोई करीब आता है। नाज़रीन, जिस्म पर कलवंजी का तेल लगाने से कोई जहरीला कीड़ा आपको काट नहीं सकता और ना ही करीब आता है। उम्मुल मोमिनीन ऐशा बयान करती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाक़े आलम में देखा। आपके पास पानी का एक प्याला था, आप अपना हाथ प्याले में डालते, फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मौत की नागवारियों और मौत की बेहोशियों पर मेरी मदद फरमा। अगर कोई शख्स बुखार और खांसी में मुब्तला हो तो रात को सोने से पहले जैतून का तेल उंगली पर लगाकर नाक में लगाएं, इंशाअल्लाह फौरी आराम मिल जाएगा। फलों में आड़ू, अनार और कच्चे सेब का जूस जिस्म को ताकतवर बना देते हैं। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। रोज़ 4 से 5 खजूरें खाने का मामूल बना लो। जिस्म में खून की कमी चंद दिनों में पूरी हो जाती है। जैतून का तेल जिस्म की नशोनुमा और जिल्द के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। मुट्ठी भर चने निहार मुँह खाने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। करीब बैठकर लैपटॉप या स्क्रीन वगैरह देखने से इंसान जल्दी बहरा हो जाता है। फ्रिज में फल रखे जाएं तो दूसरी चीज़ों में भी खुशबू आने लगती है, इसलिए तमाम खुशबू वाले फलों को प्लास्टिक के लिफाफों में बंद करके फ्रिज में रखा जाए, जिससे फल ठंडे और महफूज रहेंगे और उनकी खुशबू दूसरी चीज़ों में दाखिल नहीं होगी। हरी मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ़ से बचाता है और जिस्म से जरासीम का ख़ात्मा करता है। जब भी भूख लगे तो फ़ौरन खाना ना खाओ, कुछ देर ठहर कर खाओ, इससे जिस्म में ताकत आ जाएगी। अबू सईद बयान करते हैं कि मुआविया मस्जिद के एक हलके के पास आए तो फरमाया, तुम क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की कसम उठाते हो कि तुम सिर्फ उसलिए बैठे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं कि हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं। उन्होंने फरमाया,
मैंने तुम्हारे मुतल्लिक़ किसी बदगुमानी की वजह से तुमसे कसम नहीं उठवाई, और आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसी कुर्बत हो। उसके बावजूद मैंने कम हदीसें बयान की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक हलके में तशरीफ़ लाए तो उनसे फरमाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह का ज़िक्र करने और इस बात पर इसका शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि उसने इस्लाम की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई और उसके ज़रिए हम पर एहसान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की कसम उठाते हो कि तुम सिर्फ़ इसलिए बैठे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ़ इसलिए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे मुतल्लिक़ किसी बदगुमानी की वजह से तुमसे कसम नहीं उठवाई, बल्कि जिब्राईल मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमाता है। इंसानी जिस्म में ताकत डालने का जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। भुने हुए चने खाने से बदन में आयरन और प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। ऐसी औरत 80 साल तक जवान रहती है जिसका मर्द बार बार उसकी तारीफ़ करे। बदन में बेपनाह ताकत चाहते हो तो रोज़ाना निहार नीम गर्म दूध में 3 खजूरें डालकर इस्तेमाल करो। मोटापा दूर भगाने के लिए नीम गर्म पानी में कलवंजी का बारीक सफ़ूफ और हम वज़न काली मिर्चें मिला लें और उसके साथ लीमू और शहद सुबह निहार पी लें। ज़ैद चर्बी को ख़त्म करने के साथ साथ शुगर को भी कंट्रोल करेगा। नाज़रीन, लिकोरिया के मरीज़ किशमिश 10-12 दाने रोज़ाना सुबह के वक्त खाएं। निहार सुबह नाश्ते से पहले या बाद किसी भी वक्त खा सकते हैं। 41 दिन ज़रूर करें, लिकोरिया का नामो निशान तक नहीं रहेगा। रोज़ 3 बादाम खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल घट जाता है और जिस्म की कमज़ोरी दूर होने लगती है। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नमक से भरपूर ग़िज़ाएँ खाने से जिल्द को नुकसान पहुँचता है और ये आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुलाती है। पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया करो, ये जहन की तेज़ी में इजाफ़ा करता है और गुस्से को कम करता है। खाली पेट पिस्ता खाने से शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।